Jai Hind students and welcome to the official YouTube platform of Nimbus Defense Academy. Today we have with us Lieutenant Chahat Ali, who is recently commissioned from OTA Chennai, and in this conversation he will be sharing his journey of preparation, his experiences, and what he would like to tell you guys who are preparing currently for your defense examinations, be it CDS, NDA, FCAT or any other SSB entry. So first of all, welcome Chahat, and how does it feel being commissioned into Indian Armed Forces after so long and such a rigorous period of hard work and training? It's a matter of, I would say, proud. It's a proud feeling, privileged feeling that something that you have been dreaming from your childhood, and now you can see yourself, the one you were dreaming. So it's a proud feeling for me, for my parents. The very first thing is that I'm feeling proud because my parents are proud as of now. So this is the thing I'll say, and it has been a rigorous. I went to a rigorous training. I'll not say the training was a rigorous. It's just nothing. It is basically building your mental strength, nothing else. And rest is, I'll say, again. Then when you have gone through that journey, the preparation journey, and when you stand at the end and see back that I have made it. So that's something बहुत एक feeling that can't be expressed. Obviously, I can see it is actually very difficult to express the feeling. So now I'll ask just a very open-ended question. और I know you might feel like कि मतलब ये कैसे मैं क्या जवाब दूँ इसका. But the thing is, I just want to know, and I know that multiple candidates are there who want to know how difficult it is to become an officer in armed forces, or how simple is it? It's equally difficult and equally simple. It's on you, how you take it. Okay, That's it. that's what I say. Yeah. So if we talk about the stages of preparation, so in most cases we have written examination, then we have SSB interview. So if you have to quantify which one is more difficult, written exam or SSB interview? I'll say written. Written is difficult? Written is more difficult. Okay. So any specific reason behind it? Specific reason is that written is something that you have to prepare. Okay. But SSB is something that you can't prepare. It's your personality that you have to build. Yeah. From a long time, or you have to work on yourself. So SSB is not about preparation. First thing I will say कि आप prepare कर लोगे और वो हो जाएगा. SSB वो चीज़ नहीं है. इसमें आपको एक इंडिविजुअल और एक पर्सनैलिटी चेक करने हैं. दे आर लुकिंग फॉर समथिंग अ लीडर बेसिकली, कि जो सिचुएशंस में अपने आप को कैसे डाल सकता है, कैसे हैंडल कर सकता है ना. तो वो चीज़ है. तो रिटर्न में क्या आपको प्रिपेयर करना है. बिल्कुल. और SSB आल से कि SSB में कोई प्रिपरेशन नहीं होती है सच. वो सिर्फ It is small little task every day for a long period of time. long period of time. Yeah. Okay. But the popular perception is कि return तो हो जाएगा, SSB मार देगी. तो do you also feel the same, or your opinion is totally different? कि मतलब SSB हो जाएगा, return मार देगा. No, prior to my recommendation, my feeling was same only. Okay. I thought was same only कि हाँ यार रिटर्न तो निकाल लूँगा. हाँ. SSB में जाके फिर कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी. बट आफ्टर गेटिंग रिकमेंडेड आल से आप किसी से पूछोगे ना, देन से यार नहीं SSB इज फार मोर ईजी देन रिटर्न. क्यों? क्योंकि SSB में एज सच कोई प्रिपरेशन नहीं है. ये तो आपको कुछ वैसा इंडिविजुअल कुछ अलग नहीं करके दिखाना है. वो जस्ट आपको सिंपल टास्क हैं. उन टास्क को अगर आप एक राइट मैनर में कर देते हो, जिस अकॉर्डिंगली जिसके वो जज करना चाहते हैं आपको, तो दैट्स इट. आप GD की प्रिपरेशन तो नहीं कर सकते. बिल्कुल. हाँ, आप नहीं कर सकते GD की प्रिपरेशन. Natural. वो नेचुरल है. If you are talkative, if you talk to people every day, then it just become a natural process for you. You should know how to express yourself. That's it. Okay. So actually, if we talk about the timeline of written examination, then SSB, then medicals, and then merit, it takes about 1 year. But if we actually see कि मतलब how much time does it take for one to become an officer, it means कि even before the notification is out, how much time prior to that notification should one start his preparation? If I talk about written, then prior to your notification, I'll say the very first day when you went for the exam, went for your first exam. If you have given your first examination, for suppose you have appeared for CDS, then start your preparation just right away coming out from the exam. Okay. उसी टाइम पे आपको स्टार्ट कर देना चाहिए कि यार हाँ यहाँ पे ये गलतियाँ रही है
और अगर आप फर्स्ट नहीं अपीयर कर रहे हो, आपका फर्स्ट अपीयर है, आप लाइक इससे पहले आपने कोई अटैम्प्ट नहीं दिया, आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है, फिर आई थिंक सो यू विल नीड एटलीस्ट ऑफ 6 to 7 months एटलीस्ट फॉर रिटन एग्जामिनेशन, क्योंकि यूजुअली परसेप्शन ये होता है कि हम 1-2 महीने में प्रिपेयर कर लेंगे, बट वो 1-2 महीने आपको सिर्फ रिवीजन के लिए चाहिए होता। बिल्कुल, ये तो है। चलिए, तो रिटर्न के ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। वी हैव अदर पीपल ऑल्सो हु कैन गाइड स्टूडेंट्स अबाउट रिटर्न एग्जामिनेशन। तो अभी जो हमारा फोकस रखते हैं अगले आधे घंटे के लिए, उस फोकस को हम रखते हैं अपने सिर्फ और सिर्फ SSB एंड परसेंटेज डेवलपमेंट के लिए सर, ठीक है। वी ऑफन हैव हर्ड अबाउट 15 OLQs, और सब लोगों ने जो भी एस्पिरेंट बनते हैं वो बेसिकली 15 OLQs की पिक्चर लगा लेते हैं, दिन रात उसी को रटते रहते हैं। तो 15 OLQs जो रटता है उसको भी याद नहीं रहते। बट इफ़ आई आस्क यू कि आप सिंपली बता दो कि मतलब एक कैंडिडेट में अगर ये क्वालिटीज़ हैं तो उसको कोई नहीं रोक सकता। नथिंग, योर पर्सनल ओपिनियन। ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं आता हूँ आपको। बेसिकली OLQs और ये सब ऐसा कुछ नहीं होता कि आप OLQs रट लोगे एंड यू विल सेल थ्रू, या ऐसा नहीं है। द थिंग इज दैट वो OLQs उन्हें आप में चेक करने हैं। बिल्कुल, आपको वो चीज़ दिखानी नहीं है उन्हें जाके कि हाँ मेरे को याद है और मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये बेसिकली क्या होता है ना, ये अगर आप जो आपके डेली टास्क हैं वो आप अच्छे से कर रहे हो ना, तो यू आर एवरेज स्टूडेंट। इफ़ यू आर एवरेज स्टूडेंट ना, यू आर एवरेज स्टूडेंट, नॉट से कि यू हैव गॉट एक्सीलेंट मार्क्स, है ना, यू हैव गुड मार्क्स। यू आर एवरेज स्टूडेंट, आप एक अच्छे एवरेज स्टूडेंट हैं, आप एक अच्छे एवरेज भाई हैं जो अपने बहन का या ब्रदर का सिस्टर का ख्याल रखते हैं, आगे अच्छे बेटे हैं। मतलब आप हर तरीके से अगर एवरेज हैं, आप अपने जो काम है डेली के काम है अगर आप सही कर रहे हैं, तो कोई वैसा कुछ ऐसा कोई बड़ा वो नहीं है कि हाँ मुझे इसके लिए प्रिपेयर ही करना है। वो सिर्फ आपको इसी चीज़ पे तो जज किया जा रहा है कि आपने अपना पास्ट कैसा निकाला है, आपका प्रेजेंट क्या है और आपका आने वाला फ्यूचर को प्रेडिक्ट। यू मीन टू से कि at least a person should be responsible. If he is responsible and responsibly doing all the tasks responsible that he or she is given during the day, then they are. Other than that, responsible हो गया, he should be sincere, and secondly he should be sincere towards himself. yeah, कि मैंने अपने लिए कुछ करना है, आई एम डूइंग समथिंग फॉर माई सेल्फ। इफ दिस इज माई ड्रीम, आई वॉन्ट टू बिकम ऑफिसर, तो दिस इज माई ड्रीम, it will benefit me only. As of now, ये ही है। yeah, that relation is very much important. So yeah, So it was your fourth attempt when you got recommended. I got recommended. So मतलब what do you feel like कि you did in your fourth attempt but not in the first, second and third attempt that helped you get through? Stress. Yes. Okay. I was very much stressed in my first, second and third attempt. Okay. But in my fourth attempt, I was not stressed that much. Any particular reason for that कि हो गया जो होना था? No, that was not the case. So in my fourth attempt, I went for like with this perception I went कि यार अब की बार तो हो जाएगा। अच्छा, हाँ, the positive side. हाँ अब की बार हो जाएगा, कोई बात नहीं भी होगा तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, अगले अटेम्प्ट में आ जाएंगे। बट तो वो था, स्ट्रेस था। स्ट्रेस इज Nothing really important because you got 14 tasks during the SSB and stress management is very much important. Moreover, you see candidates like you preparing really hard, तो stress तो हो जाता है। वो था। और सेकेंडली व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग ना, देन आई केम अक्रॉस वन थॉट दैट स्ट्रेस इज समथिंग जो आप खुद लेते हो। नर्वसनेस इज नेचुरल चीज़, वो तो होगी आपको, आप नर्वस तो होंगे, बट स्ट्रेस आप खुद लेते हो। बिल्कुल, है ना, तो उसको अवॉइड करोगे तो बहुत कुछ ईजी हो जाता है उस टास्क में, बहुत कुछ ईजी हो जाता है। फिर क्या होता है ना, आप स्ट्रेस हो तो आप फिर सोच नहीं पाते, रियल टाइम सोल्यूशंस आप नहीं निकाल पाते। and SSB is all about real time situations only. So this one, when I also went through my SSBs, there was one thing, the part which I enjoyed the most was the conversation with the interviewing officer. So if I have to recall my SSBs, then the best thing I remember is my conversation with the SSB interview. So because they ask very interesting questions. So did you also find some interesting question during your SSB? Yeah. The one in which you got recommended, and I would also like to know about the answers that you gave. So my interview went for like, I would say 1 hour. Okay. So it was more specific about my job, as at the time I was working. So it was more specific about my job. He was not interested in my past. He was not interested in what I scored, what like sports if played. He straight away came to the job interview only. Okay. So, no, sorry, job interview I'm saying, to my job only, straight away come there only. And वहाँ से फिर उन्होंने क्वेश्चंस पिक करने शुरू करे, एंड वो बहुत डीप जाता रहा। Okay. वो एक क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन के बाद वो बहुत डीप जाता रहा। तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि अब मेरे पास कोई वो नहीं था, आंसर नहीं था कि मैं क्या दूँ।
बट उनके पास सवाल बहुत थे, उनके पास सवाल बहुत थे। तो ये था उसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मेरा था, उन्होंने जब मुझसे मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा, ओके वो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो उसमें ये था कि यूजुअली सर को भी बहुत नॉलेज थी, आई थिंक सो वुड बी फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड ओनली, तो सर को भी बहुत नॉलेज थी उसके अकॉर्डिंग में। तो वो मीन दे आर एक्चुअली प्रिपेयर्ड बिफोर योर इंटरव्यू. हाँ, तो See, I was from economics background, but that with depth that they were asking question regarding economics, and again other candidate went and he was from other background and he also said the same thing. Yeah, मेरे background के बारे में पूरा सब कुछ पता है इनको. So I think they are actually prepared before your interview. So you have to have a greater knowledge about your own subject. coming about there is one instance in every interview that I'll say there is something sarcastic in the interview, आता ही आता है इंटरव्यू ऑफिसर की तरफ से। तो he asked me that क्या हो गया, इतनी देर कैसे लगी यहाँ आने में? तो so I said sir like was preparing and नहीं हो पा रहा था, तो अभी हुआ तो अभी आया हूँ। तो कहता अच्छा ठीक है। तो सर ने कहा ठीक है। फिर उसके बाद सर कहते कि अच्छा चलो मान लो अब की बार नहीं होता तो क्या होगा। तो इससे पहले मैं बोलने लगा तो सर कहते यार वो मत बोलना कि सर डेफिनेटली दिस टाइम आई Cliche answer होगा. हाँ कि डेफिनेटली आई विल मेक आउट दिस टाइम एंड नहीं होगा तो यो सीधा बताना नहीं होगा तो क्या करेगा। हाँ. मान के चल तो नहीं हो रहा है कल, अगर तू बोर्ड वो सॉरी वो होता है यहाँ से कॉन्फ्रेंस आउट होता है तो क्या करेगा। मैंने सर प्रोबेबली मेरा बेंगलोर में था, तो मैंने सर प्रोबेबली गोवा जाऊँगा। तो मैंने कहा था सर प्रोबेबली सर गोवा जाऊँगा। क्या वो अच्छा, और मैंने कहा घूम फिर के घर चला जाऊँगा। फिर मैंने कहा फिर सर वही जॉब है, जॉब करूँगा और फिर उसके बाद दोबारा आऊँगा। तो कहता तो सर ने कहा कि फिर नेक्स्ट टाइम क्या एक्स्ट्रा प्रिपेयर करके आएगा। तो फिर वो थोड़ा सा ट्रिकी था मेरे लिए कि नेक्स्ट टाइम क्या प्रिपरेशन कैसे करके। Because he is trying to ask you कि what you are lacking right now. हाँ, तो उनका ये पॉइंट था। तो मैंने सर को ये कहा था कि सर आऊँगा तो सर ऐसे ही जैसे अब की बार आया हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं प्रिपेयर नहीं करूँगा सर। मैं अब हूँ कि मुझे लगता है कि इस टाइम भी मैं इतना प्रिपेयर हो चुका हूँ कि हाँ मैं रिकमेंड हो सकता हूँ। सर कहते हैं कॉन्फिडेंस, तो कहते हैं कॉन्फिडेंस आपका क्या है। मैंने सर थिंक सो कॉन्फिडेंस ही है। तो वो है कि मैं सर हाँ मैं अभी प्रिपेयर हूँ, मैं इनफ प्रिपेयर हूँ कि अगर मैं इस अटैम्प्ट में नहीं हो रहा हूँ तो मुझे इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मतलब प्रिपेयर करने की। एंड दिस कम दिस वे कि बस मैं ऐसे ही आऊँगा। क्योंकि एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है एसएसबी में, एक्चुअली व्हेन द इंटरव्यू इज अबाउट टू बी ओवर, दे आस्किंग कि एनी सजेशन और वुड यू लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन टू मी. सो डिड यू आस्क एनी क्वेश्चन टू द इंटरव्यूइंग ऑफिसर? नहीं, मैंने ऐसा कोई नहीं किया था। सर ने पूछा था कि इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, तो मैंने उसके रिगार्डिंग में कुछ नहीं पूछा था कि लाइक मेरा इंटरव्यू कैसा रहा, वेदर आई विल मेक इट आउट दिस टाइम और नहीं, क्या होगा, आउट होगा या कैसे रहूँगा, आए क्वेश्चन। तो सर बस उससे पहले सर ने पूछा था कि शाम में क्या प्लान्स है। तो है सर बेंगलोर घूमूंगा। तो कहता कहाँ घूमेगा। मैंने सर पता नहीं, अभी के लिए तो ऐसा कुछ पता नहीं है, लेट्स सी बाहर जाऊँगा तो कुछ देखूँगा। जाने से पहले सर आस्क मी इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग जस्ट फील फ्री टू आस्क। सो आई वाज लाइक नो सर थैंक यू, नो क्वेश्चंस। इट्स ओके It always happen with me. नहीं पूछ को आने जो भी है पूछ। And if I ask you to ask me, हाँ ठीक है, if I force you to ask me, हाँ तो कहता नहीं मैंने बोला है तो पूछ। तो मैंने सर एनी गुड प्लेस इन बैंगलोर दैट आई कैन विजिट। मैंने सिर्फ यही पूछा भी। मतलब I'll tell you my case, ठीक है, this happened me with me and उस तुम्हें रिप्लाई बड़ा और था उनका, क्या ask me a question, but I said I don't have any question, ठीक है, no I am forcing you to ask me a question, ठीक है। Then I asked it, sir you are from which regiment, ठीक है। Then he replied no person question and that was a moment I knew कि या तो ये कुछ अच्छा हो गया तो कुछ बहुत बुरा हो गया, ठीक है। And then I left. Obviously I was confident of that at that point of time. Some other candidates also asked me कि what was his last question. I told them कि यही हुआ। तो interestingly enough, they all went. He asked them to ask the same question, asking the question. Then again, क्योंकि मैं उनको बोल रहा था मैं ये पूछ के आया, तो 3 कैंडिडेट्स मेरे पास ऐसे थे जो कह रहे कि हमने भी उसकी अरेंजमेंट पूछी, क्योंकि उनके मन में और कोई चीज़ आई नहीं थी पूछने के लिए। समटाइम्स वो होता है कि तुम्हारे आसपास क्या क्या हो रहा होता है, तुम्हारे दिमाग में बातें बैठ जाती हैं। वो होता है, वो यूजुअली वही होता है। वो आपके दिमाग में स्ट्रेस चल रहा होता है तो आपको और नहीं मिलता बाहर फिर आप सोच नहीं पाते, बाहर ही निकल पाते, उस रूम से बाहर ही निकल पाते सोचने के लिए। तो वो था। तो माई इंटरव्यू वॉज मोर ओवर अ कन्वर्जेशन। तो इंटरव्यू दैट्स द बेस्ट काइंड ऑफ इंटरव्यू, was more over a conversation between sir and me and was really good. Okay, so before getting recommended, where were you working and what was your job profile? I was working as a business development executive. Prior to that, I was working as a front-end developer. Okay, But I changed my stream, my job profile. so it was a stressful work or just casual work?
No, I would say it was casual. The Because I just thought, development was more of a stressful for me because I have to prepare as well as. So that's why I thought कि कुछ ऐसा लेते हैं कि जो वहाँ भी benefit दे मुझे SSB में भी. so it was clear in your mind that you are doing this, but you want to get there. That I want to be there only. And that's That kind of spirit is very much necessary. it was in my mind from the starting only that this is the place where I belong. Either way, I'll be here only. किसी ना किसी तरीके से आना है, मतलब ट्राई तो करना ही है, छोड़ना नहीं है, लास्ट तक भी नहीं छोड़ना है. बिल्कुल. वो है. तो फिर उसके बाद मैंने प्रोफाइल चेंज की अपनी. आई केम टू BD. सो BD वाज लेस स्ट्रेसफुल. उसमें इतना काम नहीं होता है यूजुअली. एंड सेकेंडली BD इज मोर ओवर अ जॉब ऑफ इंटरेक्शन. वी यू इंटरेक्ट विद द पीपल. इट्स BD बेसिकली इज अ ब्रिज बिटवीन द कंपनी एंड क्लाइंट. Okay. तो क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करना, कंपनीज की पॉलिसीज, ये सब वो सब प्रोजेक्ट्स डीलिंग, वो तो उसने बहुत हेल्प किया मुझे. होता है हाँ, जिंदगी के लिए इंटरेक्टिव सेशंस जो थे उन्होंने बहुत हेल्प किया. ये तो है. बिकॉज आई वॉज आस्किंग यू दिस क्वेश्चन बिकॉज देयर इज अ परसेप्शन कि जॉब के साथ ना प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है ईजी हो जाता है. फॉर SSB. बट व्हाट अबाउट रिटर्न? हाँ, रिटर्न मुश्किल हो जाता है. SSB ईजी हो जाता है. वैसे रिटर्न भी ईजी हो जाता है. आप उस चीज़ को लेते कैसे हो. कभी क्या होता है कि जॉब बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती है. फिर आपको ये होता है कि यार यहाँ से निकलना है बस, कि यहाँ से निकलना है. फिर आप देयर आर सम हाँ अप्स एंड लोज. अप्स एंड डाउन. सिर्फ वो सोचता है कि यहाँ से निकलना है, किसी भी तरीके से बस रिकमेंड हो जाऊँ. तो मेरा ये था कि जब मेरा एक पीरियड ऐसा आया था कि थोड़ा सा वो अप्स एंड डाउन चले थे, तो फिर मेरे दिमाग में आया था कि यार नहीं, यहाँ से निकलना है. निकलने का ऑप्शन एक ही है, वो है रिकमेंड होना. तो उसके लिए और मेहनत करता हूँ फिर. ये बिल्कुल सही अप्रोच है ये. ठीक है. और कैंडिडेट्स के लिए भी यही अप्रोच बेस्ट है कि इफ़ यू नो दैट यू वांट टू गेट देयर देन जस्ट वर्क फॉर इट. डो नॉट लुक फॉर एक्सक्यूजेस. आई वोंट से कि जॉब करते हुए मेहनत करना बड़ा आसान हो जाता है या कुछ हो जाता है. बट येस, यू विल हैव टू वर्क टू द टॉप मोस्ट ऑफ योर पोटेंशियल एंड देन ओनली यू विल गेट थ्रू. चलो, ट्रेनिंग कैसी थी? ट्रेनिंग वॉज गुड. मतलब गुड, मतलब यहाँ बोल रहे हो कि वहाँ भी गुड ही फील होता है? इट वॉज लाइक स्टार्टिंग में होता है स्ट्रेस होता है. स्टार्टिंग में ये होता है कि नहीं, अभी तो बाहर स्ट्रेस नहीं लेना. कहाँ आ गए. हाँ नहीं, स्टार्टिंग में ये होता है कि कहाँ आ गए. ये होता है कि यार बताओ था कहाँ आना है यहाँ. हाँ, तो ये वो था कि ये तो नहीं था यार जो लक्ष्य मूवी में दिखाई थी. लक्ष्य तो बहुत ज़्यादा दिखाया है. तो मैंने कहा ये तो नहीं था यार जो मूवी में दिखाया था. ये क्या चल रहा है. तो यूजुअली टाइम कम मिलता है, थोड़ा पर्सनल टाइम कम मिलता है. माय फ्रेंड्स हु आल्सो वर इन OTA चेन्नई, तो कुछ आपके साथ भी थे, कुछ आपसे पहले भी थे. तो वो कहते हैं कि पहले प्रिपेयर करते हैं तुम्हें, मतलब तुम्हें स्टार्टिंग से नहीं धकेल देते, पहले तुम्हें प्रिपेयर करते हैं कि अब तुम्हें लेके आएंगे और इस दिन तुम्हारा शुरू हो जाएगा सब. तो हाउ वाज दैट पीरियड? वो यूजुअली क्या होता है, एक स्टार्टिंग में कुछ टाइम पीरियड होता है. उसके लिए यूजुअली आपको कोई इतना तंग नहीं करता है. वो होता है कि आप सेटल हो जाओ आराम से. भागना चाहिए. हाँ, आप सेटल हो जाओ आराम से. और वो होता है फिर उसके बाद एकदम आता है. फिर आता है एकदम जो भी आता है. फिर उसके बाद ब्लैंक होना शुरू हो जाते हो आप. यार ये क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है. बट हाँ, उसमें भी मज़ा है. उसमें मज़ा ऐसे है कि दैट डिपेंड्स कि आपके साथ जो आपके कोर्समेट है ना, हाँ, जब आप उनके साथ हो देख लेंगे जो भी होगा क्या होगा. ये तो है. तो फिर वो होता है. फिर उसके बाद अब जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, फिर अभी वही चीज़ें याद आती हैं. मज़ा आ रहा था. हाँ, अभी वही चीज़ याद आती है. यार ऐसे था वैसे था, मज़ा आता है मेरे साथ जीवन में. नहीं, और जैसे आपने अभी बात करी कि कमराडरी की बात करी अपने दोस्तों के साथ, NDA और IMA कमराडरी की बहुत बात की जाती है. मैंने कभी OTA कमराडरी की बात नहीं सुनी कभी पॉपुलर वे में. तो कुछ बताओगे उसके बारे में? OTA सवाल से कमराडरी से. जैसे NDA वाले तो कुछ अलग ही लेवल पे ले जाते हैं कमराडरी, बिकॉज दे आर टुगेदर फॉर 4 years. तो वो उनके साथ एक बॉन्ड बन जाता है. तो OTA में भी बॉन्ड बनते हैं और बहुत अच्छे बॉन्ड बनते हैं. मेरे भी हैं और हमारे जो सीनियर्स रहे हैं उनके भी हैं. OTA में बॉन्ड से ज़्यादा ना एक ब्रदरहुड, बोलूँगा ब्रदरहुड ज़्यादा आता है. होता है ना स्पिरिट, एक होता है कि कोर्समेट स्पिरिट आना और एक होता है ब्रदरहुड. बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है इन दो चीज़ों में. तो OTA में मैं कहूँगा जो यूजुअली जो रिलेशंस बनते हैं ना आपके अपने कोर्समेट्स के साथ, कि OTA में थोड़ा सा क्या टाइम पीरियड मेरा फास्ट चलता है, सब कुछ बहुत फास्ट चलता है, बहुत फास्ट चलता है. तो वहाँ पे आपको किसी एक बड़ी की ज़रूरत होती है, बिल्कुल दोस्त की ज़रूरत होती है कि जो साथ चलता रहे. बिल्कुल, क्योंकि उस फास्ट इन्वायरमेंट में आप प्रोफेशनल नहीं होते. हाँ, तो वो बियॉन्ड प्रोफेशनल्स भी होते हैं ना फिर कि फिर वो उसके बाद एक दूसरे के साथ बैठना आराम से. अब सारा दिन निकल गया, फिर आराम से बैठते हो आप 10-15 मिनट बात करते हो, घर की बात, यहाँ की वहाँ की. तो वो होता है. तो होता है ना वो भाई
तो वहाँ पे OTA में अगर आपको मिलेंगे ना, OTA में आपको कोर्समेट्स नहीं मिलते, OTA में आपको भाई मिलते हैं। बहुत बढ़िया बात, ठीक है। और जैसे एक और चीज़ है, जैसे जितनी हमारी इंडिया की ट्रेनिंग अकेडमीज़ है, सबसे डिफिकल्ट वेदर तो मेरे ख्याल से चेन्नई का ही होगा, हाँ, है ना? तो क्या वेदर ट्रेनिंग को डिफिकल्ट बना देता है? वेदर यूजुअली ट्रेनिंग को डिफिकल्ट बना देता है। द थिंग इज़ दैट डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ा जो वहाँ पे है ना, एक काइंड ऑफ ब्लॉकेज आती है ना ट्रेनिंग के, वो डिहाइड्रेशन होती है। तो आप वहाँ डिहाइड्रेट बड़ी इजीली बहुत जल्दी हो जाते हो। हाइड्रेट करना पड़ता है आपको बार बार। वेदर एक प्रॉब्लम है वहाँ पे, वरना से आपने एकेडमी फिर उस वे से वर्क कर दिया है। एकेडमी भी उस वे से वर्क कर दिया, प्रिकॉशंस हैं, एकेडमी अपनी तरफ से प्रिकॉशंस भी लेती हैं। और दी थिंग दैट हाँ कैडेट आया हमारे पास आया है, ठीक है, तो ये यहाँ से निकले तो यूजुअली एक आर्मी ऑफिसर बन के निकले, कैजुअलिटी ना निकले। कैजुअलिटी ना निकले यहाँ से। तो एकेडमी उस वे में वर्क कर दी है। दी ऑफिसर्स देयर, द कमांडेंट, दे एंड दे हेल्प यू अ लॉट, दे थिंक अबाउट यू, द RMO स्पेशली, you are provided with the ORS, you are provided with the hydration powders। तो अकेडमी में इवन तो ट्रेनिंग में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, बट जो प्रिकॉशंस लिए जाते हैं फिर वो अकेडमी अंदर से लेती है। ठीक है। और जैसे OT है, OT बस आप अभी हमने बात करी, सब कुछ बहुत फास्ट चलता है, थोड़ा बहुत बीच में टाइम मिलता होगा, थोड़ा बहुत ही मिलता होगा, वहाँ पे एस्केप क्या होता है? ये सब रगड़े से, सब ट्रेनिंग से एस्केप क्या ढूंढते हो आप, कि है ही नहीं कुछ एस्केप ढूंढने के लिए? एस्केप यूजुअली स्टार्टिंग में जाते हैं तो आप एस्केप ढूंढते हो, फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आ जाता है कि फिर आपको पता लगता है कि हाँ यार, ये जो आप जिसको जैसे रगड़ा कह लो, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कह लो, या जो कुछ भी कह लो, कि यही है जो बॉन्ड बिल्ड करता है। एक्चुअल में जो बॉन्ड बिल्ड करता है ना कोर्स के बीच में, वो यही चीज़ है। फिर उसके बाद हम वो एस्केप रेट ना छोड़ देते हो, नहीं यहीं चलते हैं, मज़ा आएगा। उसके बाद ना हम उसको एंजॉय करने लग जाते हो। मकरापंती बिल्कुल खत्म। मकरापंती स्टार्टिंग में होती है, हाँ, स्टार्टिंग में होती है यूजुअली। इन सेशंस में कोई मकराबंदी ऐसा करता नहीं है। हाँ, वो करता है कि जैसे सेशन चल रहा है, सारे एक साथ ज़रूर है, वहाँ पे सेशन के बीच में थोड़ा बहुत मकरा मार लिया तो वो एक अलग चीज़ है, बट भागता नहीं है कोई। फिर आपका बॉन्ड ऐसे बन जाता है कि यूजुअली आपको पता है कि हाँ मेरा कोर्स है इस टाइप पे, मेरा कोर्स मतलब सीनियर या कोई भी है जो चल रहा है वहाँ पे, तो फिर चलते हैं यार, ज्वाइन करते हैं। सही है। तो वो है। तो मूवीज़ में दिखाते हैं वहाँ पे हाँ, मूवीज़ हर वीक? वीकेंड सॉरी, ट्वाइस इन अ वीक, वेडनेसडे एंड सैटरडे। एंड व्हाट काइंड ऑफ मूवीज़, अगर आप कुछ नाम बताना चाहो ऑडियंस को तो? ऐसे जो भी मतलब उनको भी देखनी चाहिए। हाँ न्यू रिलीज मूवीज़ हैं, यूजुअली सभी दिखाते हैं वो। और एक मूवी है जो हमने 2-3 बार देखी वहाँ पे, वो है गन्स ऑफ नेवरोना। गन्स ऑफ नेवरोना, अच्छा। हाँ वो एक अच्छी मूवी है अल्फी, वो मैं सजेस्ट करूँगा। और यूजुअली जितने भी हमारे पास न्यू मूवीज़ आते हैं, न्यू रिलीज है, वो मतलब बाहर से टच रखते हो? बाहर से टच रहता है, वो एक एंटरटेनमेंट का जो साइड है वो रहता है, बिल्कुल, वो है। तो बहुत बढ़िया। तो आफ्टर ऑल दिस ट्रेनिंग, ठीक है, जब आप पास आउट होते हो उसके बाद आपको अपनी अलग अलग रेजिमेंट्स दी जाती हैं, ठीक है, तो उसके बाद मन करता है कि वापस चलने का अकेडमी? उसके बाद यूजुअली क्या होता है, क्योंकि पहले तो जाते हो तो एक ये होता है ना कि एक टाइम है, ये काटना है, यहाँ से निकल जाना है, ठीक है, फिर बाद में वो भाईचारा बन जाता है, सब कुछ हो जाता है। फिर आई हैव सीन मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स वो कहते हैं कि अकेडमी बढ़िया थी, हाँ है ना, रेजिमेंट्स पे तो पता नहीं कुछ और ही हो। तो यूजुअली अभी तो मैंने ऐसा रेजिमेंट ज्वाइन नहीं किया, मैं ज्वाइन करूँगा ऑन 27 आई बी लिविंग। बट अभी की अगर मैं बात करूँ, अभी मैं 10-12 दिन से घर पे हूँ, तो फिर यही बात होती है डेली, यार चलते हैं ऑफिस। ये होता है। पहले तो ये था कि हाँ यहाँ से निकल जाए दोबारा, भाई मैं नहीं अकेडमी देखूंगा, मुड़ के भी नहीं देखूंगा। बट नाउ लाइक क्या रहा, यू आर मिसिंग योर पोस्टमेट्स, यू आर मिसिंग योर ब्रदर्स। आई नॉट से पोस्टमेट्स अगेन, आई यूज द वर्ड ब्रदर इज द वर्ड आई यूज। सो नाउ यू आर मिसिंग योर ब्रदर्स। और फिर याद आता है कि हाँ यार अभी क्या टाइम हो रहा है, अच्छा हाँ 6 बज रहे हैं, अभी ये कर रहे होते हैं, ये कर रहे होते थे, अच्छा 10 बज गए, अभी ये कर रहे होते थे। तो वो होता है, देन स्पेशली यू मिस योर जूनियर्स अ लॉट, यू मिस योर जूनियर्स अ लॉट, क्योंकि वो होता है कि व्हेन यू हैव योर जूनियर्स विद यू ना, देन यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स दैट यू हैव टू ग्रूम देम, एंड यू हैव टू ग्रूम देम नॉट फॉर देम ओनली बट टू। क्या सारे ही एक्चुअली ग्रूम करते हैं, कुछ मजे भी लेते हैं? वो तो सब चलता है सर, ऐसा नहीं है कि कोई मजे लेता है कोई ग्रूम करता है। वो एक ही बंदा है, जैसे फॉर सपोज मैं हूँ, मैं ग्रूम भी करूँगा ना, मजे भी लूँगा, ठीक है। वो मजे यूजुअली इसलिए होते हैं कि आप घर से दूर हो, उसके बाद चलो हमें टाइम हो चुका है यहाँ पे एकेडमी में, हमें 6 महीने हो चुके हैं, हम सेटल हो चुके हैं, ये लोग नए आए हैं। तो अगर वो एक फन साइड नहीं रहेगा ना, इनके साथ एंटरटेनमेंट वाला साइड नहीं रहेगा, तो वैसे ही एकेडमी बहुत फास्ट चलती है। अच्छा, और एज ए सीनियर हाउ डू यू क्रिएट दैट लाइन
कि दिस इज द फन एंड दिस इज रैगिंग? So usually, I'll say ragging. Beyond the belt jana is ragging. Beyond the belt jana is ragging. You are abusing someone unnecessarily. Then you are giving them any task that is below the dignity. बिल्कुल. है ना. तो बेसिकली फर्स्ट कुछ करने से, किसी को कुछ कराने से पहले ना, यूजुअली यू गिव अ थॉट कि हाँ यार, अगर मुझे मिलता तो मैं करता. नहीं, मैं नहीं करता. बस ये एक लाइन है. बस ये सोचना होता है कि यार हाँ, मैं इसे ये करने के लिए कह रहा हूँ, अगर मुझे ये करना पड़ता मैं करता. नहीं, मैं नहीं करता. तो बिल्कुल, बहुत बढ़िया. तभी मतलब that is how the process also becomes enjoyable. Okay, so now सारे बड़ा पार हो चुके हैं, ठीक है. डर लग रहा है आगे क्या होने वाला है? नहीं, आई एम एक्साइटेड. तो अभी के लिए तो एक्साइटेड हो कि यूनिट जाना है. बट हाँ, एक डर तो तो सीनियर से होती है बातचीत जैसे आपसे पहले जिन्होंने ज्वाइन किया? सीनियर से होती हैं. ओके. सो मेरी हुई है यूनिट्स हुई, इतने ऑफिसर उनसे सबसे हुई है. दे आर वेरी मच हेल्पफुल एंड दे आर वेटिंग फॉर मी. आओ. Well, I have also heard कि whenever you are entering as a new lieutenant in any of the unit or regiment, so there is special welcome for you as well. So कुछ ढूंढा आपने जिस regiment में आप जाने वाले हो, वहाँ का स्पेशल ट्रेडिशन क्या होता है? एक्चुअली मैंने नहीं सर्च किया अभी तक. हाँ. सो मैंने पूछा भी नहीं है किसी से. ऑल्दो माई फादर वॉज इन जैक्रिफ एंड आई एम गोइंग टू जैक्रिफ ओनली. सो आई एम गोइंग टू 13 जैक्रिफ. माई अटैचमेंट इज विद देम ओनली. सो मेरे फादर भी, माई फादर वॉज इन 7 जैक्रिफ. सो इट वॉज ईजी फॉर मी कि पूछ लूँ, कॉल करते हैं. बट मैं पर ही नहीं यार, रहने देते हैं. लेट्स हैव दैट सरप्राइज. एलिमेंट ऑफ क्यूरियोसिटी. हाँ, लेट्स हैव दैट एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ओनली. वहीं जाके देखेंगे हम. ठीक है. सो परमानेंट जाना है कि शॉर्ट पे रहना है? अभी भी एक थॉट आता है ना, एंड द मैनी कैंडिडेट्स हु थिंक कि वी शुड ट्राई ओनली फॉर परमानेंट एंड परमानेंट. तो बेसिकली अब आपको बेटर आइडिया होगा चीज़ों का, क्योंकि आप उन लोगों का कॉन्टैक्ट में हो. हाउ डिफिकल्ट और हाउ ईजी इट इज़ फॉर समवन to convert their short service commission to permanent commission, and what are the criterias? There is only one criteria, that just you have to be good with everything. If you are working as a platoon commander, then you have to be excellent platoon commander. If you are working as a company commander, you have to be excellent company commander. If you are going to some course, then So excellent there as well. Yes. So there is no bar or limit to the candidates जिनको वो permanent कर देंगे. No, there is no bar. They call that ACR, I guess. Confidential report. Yes. Okay, so you have to be excellent on your ACR, and then it is excellent in the, I'll not say excellent in the terms of your physicals only. okay. Excellent in overall, that how you deal with the situations, how you are good with your men, and the very, I'll say, the challenging thing as of now is that your men should trust you. They should trust you, and you have to build that trust. Even your seniors, because they are the one who are going to fill in your F. There's the seniors. Or my aim is not, I don't say कि मैं परमानेंट होना चाहता हूँ कि यार मैं शॉर्ट सर्विस के लिए जा रहा हूँ. बट एज ऑफ नाउ माई एम इज़ कि लाइक फॉर सपोज इफ आई एम देयर फॉर 2 years ओनली, आई शुड गिव माई होल ना पूरे पोटेंशियल पे काम करूँगा. एंड माई मैन शुड रिमेंबर मी फॉर ऑल ऑफ देयर लाइफ कि हाँ. नहीं, no, you are actually talking like a commissioned officer, and we can see कि मतलब what they have made you in that period of 1 year. So यहाँ से मेरा एक और क्वेश्चन आता है कि do you think leaders are born or leaders are made? Leaders are made. Leaders are made. लीडर कोई बॉर्न नहीं होता, कोई पैदा नहीं होता, क्वालिटीज़ के साथ भी नहीं पैदा होता. लीडर्स आर मेड, और उनको बनाने वाले, लीडर को बनाने वाला उनके नीचे वाले होते हैं. बिल्कुल, उनके नीचे होंगे वो ही उस लीडर को बनाते हैं. और उसके लिए बट वो ये अगेन आई से यू हैव टू गेन द ट्रस्ट. आपके ऊपर आपके मैन का ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ, अगर मैं पर्टिकुलरली कुछ बोल रहा हूँ कि ये करना है, तो उनके मन में वो डाउट नहीं आना चाहिए कि अगर हाँ बोल दिया करना है तो कुछ हमारे अच्छे के लिए बोला होगा, या अगर बोला है तो हाँ ये सोल्यूशन होगा तभी बोला है. वो डाउट नहीं आना चाहिए मन में कि हाँ क्यों बोल दिया यार, करें ना करें, ऐसे कर लेते हैं वैसे कर लेते हैं. तो वो एक ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत थोड़ा सा एक चैलेंजिंग है, बट हाँ इट टेक टाइम्स, बट हो जाता है. तो जैसे हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ मैं नहीं, ऑब्वियसली जो लोग बाद में वीडियो को देखेंगे वो भी समझ पाएंगे यू आर एक्साइटेड अबाउट द लाइफ दैट यू आर गोइंग टू हैव इन फ्यूचर. You were, excellent during your training, and that is why you have, achieved everything. You prepared even during your job. ठीक है, उसके आपने एसएसबी की प्रिपरेशन करी. तो ये जो चीज़ है, मतलब आपके लिए स्टार्ट कब हुई थी? मतलब when you
गॉट टू नो कि मुझे यही करना है। और देखो लक्ष्य मूवी की हम बात करें तो उसमें एक पर्टिकुलर इवेंट था, ठीक है, उसके बाद उसकी लाइफ ट्रांसफर हुई, मूवी देखा था फौजी बन जाऊँगा, बट आपके लिए वो क्या था? My father was in army, so I was in class second, I would say first. Sorry. So my father was posted in Chennai only, same location. ओके। हाँ, तो I was there only. वहाँ I saw an officer वहाँ पर। तो यूजुअली बहुत छोटा था उस टाइम पे इतना भी याद नहीं था, मेमोरीज भी नहीं थी, बट उस टाइम पे मैंने एक उस टाइम पे सोचा था कि यार आई वांट टू बी लाइक हिम। रीज़न क्या था उस टाइम में बताता हूँ। रीज़न ये था कि ये कौन है यार जो सोफे पे बैठा है, ठीक है। बाकी सब यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ। तो वो था। बट उसके बाद लाइक आई वाज इन अम्बाला ओनली लाइक फॉर 9-10 years. फिर अगेन आई वेंट टू कूलिंग कहाँ से? अम्बाला? अम्बाला ही ओनली। सो फॉर माई हायर सेकेंडरी आई वेंट टू गुजरात 11-12। फिर वहाँ पे एक अलग एक्सपोजर मिला, क्योंकि तब तक समझ भी आ गई थी थोड़ा कि क्या है। फिर वहाँ पे ऑफिसर्स को देखा, फिर उनसे ज़्यादा एक मोटिवेशन फैक्टर ये था कि जिस तरीके से आपको अच्छे ऑफिसर्स भी मिल जाते, तो यूजुअली मुझे बहुत अच्छे ऑफिसर्स मिले जिनके साथ मैंने इंटरेक्ट किया। तो फिर वहाँ मैंने चीज़ देखी कि हाँ यार, अरे कुछ लोग होते हैं जो एनकरेज करते हैं, उनको जगह पता है यहाँ पे ये अच्छी चीज़ नहीं है, वो है। तो यूजुअली मैंने बात की थी एक ऑफिसर से। सो आई वाज लाइक सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, तो क्या करूँ? तो सर कहता है यार अगर तेरा ये क्वेश्चन है आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए और क्या करूँ, तब तो तेरा होना बहुत मुश्किल है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए देन यू शुड नो कि तूने करना है और कैसे करना है। वहाँ से मुझे पता चला कि यार एक थॉट प्रोसेस ही अलग है यहाँ का। यहाँ का थॉट प्रोसेस बहुत अलग है। फिर वहाँ से एक अंदर क्यूरियोसिटी आई और जानने की। फिर धीरे धीरे फादर वाज एन आर्मी, सो एक यूनिफॉर्म का भी एक क्रेज़ था। यूनिफॉर्म से ज़्यादा मुझे इस चीज़ का था कि हाँ लाइक आई वांट टू कंट्रीब्यूट फॉर द सोसाइटी। सो व्हाट वाज योर आंसर इन द इंटरव्यू? देखो यही सेम आंसर था? हाँ सर ने ही आस्क्ड मी दैट कैसे आया यहाँ तक, मतलब क्या सोचा, क्यों आ रहा है। फिर कहा थी ये तो मत बोलना फादर वाज इन आर्मी, तो वहाँ से बना। वो भी सर ने बोल दिया था। मैंने कहा यस सर, मेरा आना भी चाहता है, कुछ तो रीज़न होगा तेरा। मैंने कहा सर फर्स्टली लाइक मैं जिस स्टेट से आता हूँ हरियाणा से, तो वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल जॉब है वो यही है सर। और हमारे यहाँ पे फिर सेकेंडली ये कि अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। ये तो है। इससे बेस्ट कुछ नहीं है। तरीके और भी बहुत हैं, बहुत से तरीके हैं, बट इससे बेस्ट कुछ नहीं है। तो सर एक सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन बोल दो, और एक अगर मैं वैसे ही लाइक आपके साथ सच बोलना चाहूँ तो एक रिस्पेक्ट भी मिल जाएगी मुझे, वो जो मैं अर्न करना चाहता हूँ। ऐसा ऐसा नहीं सर, पैसा आई वाज वर्किंग इन प्राइवेट, तो वो तो था, चलो पैसा एक अलग फैक्टर था, पैसा तो नहीं था सर। ऐसा पैसा नहीं था कि इतना बड़ा कोई फैक्टर नहीं था। हाँ बट फिर भी आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग हैंडसम सैलरी। बिल्कुल अच्छा ठीक है। तो भाई जिसका जो मर्जी इंटरेस्ट हो, ठीक है, अगर आप ढूंढोगे ना अपना इंटरेस्ट, तो यू विल गेट योर इंटरेस्ट बीइंग फुलफिल्ड बाय द फोर्सेस। दैट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू वांट टू बी। इफ यू वांट टू बी a teacher, they are instructors, come be a teacher. Yes, ठीक है। If you want to be someone who's more interested in adventure, then they are adventurous sports, आ जाओ वो कर लो। इट्स डॉक्टर्स, आपका प्रोफेशन बताओ। इफ यू आर अ लॉयर, आपने आना चाह रहे हैं, देयर इज जैग एंट्री, आ जाओ। यू वांट टू बी लॉयर, तो आप एक वो अलग दुनिया है वो पूरी अपने आप में। व्हाटएवर यू वांट टू एक्सप्लोर यू विल गेट दैट इन द फोर्सेस। ठीक है, उसे बड़े तरीके से करने का तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। तो और सेकेंडली इट्स अभी चलो कुछ मसाले वाले क्वेश्चंस। डिड यू गेट एनी मनी ड्यूरिंग योर OTA ट्रेनिंग और नॉट? इट्स गेटिंग स्टाइफन। ओके, एंड देयर इज इनफ फॉर यू टू प्रोवाइड? It's enough to survive on your training. जस्ट सर्वाइव? Survive in the sense, like yes, you can spend on yourself. Okay. So, if we talk about the exact amount of stipend, ठीक है, that a candidate gets during their training, तो कितना होता है stipend वो? In the prospectus, it is already mentioned that it's 56,000 per month. Yes, उसमें से कुछ deduct. You get it after the training or you get During the training only. From the very first month. Okay. They start crediting your salary to your account. Okay. और that is for you, so that आपकी जो basic वो है डेली Uniform हो गया या हाँ वो सब कुछ यूनिफॉर्म यूजुअली वो सब इशू हो जाता है, वो डिडक्ट होता रहता है आपकी उसी से स्टाइफन से ही डिडक्ट होता है। बिल्कुल सो बट उसमें भी फिर भी आपको मिल जाता है अमाउंट के, आप आराम से बढ़िया रह सकते हैं। ठीक है। सो दैट यू कैन स्पेंड ऑन योरसेल्फ। Okay. So now as when the last part of our conversation, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, सोचते हैं करना भी चाहते हैं, कर नहीं पाते, ठीक है,
और ऐसा नहीं कि इट इज स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर एंटर पर्टिकुलर एज ग्रुप के एनडीए वाले का थॉट प्रोसेस ऐसा होता है, सब लोग सोचते हैं कि ये बनना है। क्योंकि यार अगर कोई ऑफिसर कभी जाता हुआ दिखता है, ठीक है, तो मन में एक बार तो होती है नहीं, अब मैं क्यों नहीं बन सकता वैसा। तो ऑब्वियसली सबके मन में चाहत होती है कि वो बेसिकली वैसे बन सकते हैं, बट कई बार नहीं भी कर पाते। तो आई जस्ट वॉन्ट यू टू गिव सम स्ट्रेट फॉरवर्ड टिप्स, ठीक है, कि तुम ऐसा सोच के अगर करोगे या ऐसा थॉट प्रोसेस रखोगे तो तुम भी उसकी जगह पहुंच जाओगे। हाँ, उसके लिए व्हाट आई डिड इज कि आप सोच लो पहले कि आप पहुंच चुके हो वहाँ, कि मैं पहुंच चुका हूँ वहाँ, पहले ये सोच लो। फिर आपका ना एक वो माइंड जो होता है ना प्रोसेस करना, अलग तरीके से प्रोसेस करेगा। फिर आप एक अलग जोन में जाके प्रोसेस करते हो सब कुछ, एक तो है। हाँ, तो फिर वो सब चेंज हो जाता है। फिर आप वो डेली जो एक कैडेट कह रहा हूँ, आई थिंक सो, जो एक कैंडिडेट है उसकी तरह नहीं सोचते। फिर आप सोचते हो कि हाँ, आई एम लाइक एन ऑफिसर नाउ, तो स्टार्ट विद द डेली लाइफ, डेली रूटीन, कि जो कुछ करना है वो ढंग से ऑर्गेनाइज वे में करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करो, सिंसियर रहो, दैट्स इट। और हाँ, एसएसबी के लिए तो यही है। एसएसबी के लिए वही जो आपके डेली जो टास्क हैं, अगर आप वो अच्छे से कर रहे हो तो इन सेल थ्रू। एंड सेकेंडली, बी आई से डोंट बी अ इंट्रोवर्ट ना, बी टॉकेटिव, और बात करो लोगों से। बहुत टॉकेटिव, बहुत, यू शुड नो योर लिमिट्स। यू शुड नो योर लिमिट्स। बहुत नहीं, मतलब आपको ये पता होना चाहिए। मतलब द वर्ड दैट डिफाइंस योर सिलेक्शन इज एवरेज, हाँ, है ना। यू डोंट हैव टू बी एक्सीलेंट, Excellent. यू डोंट हैव टू बी बिलो पार, यू जस्ट हैव टू बी Average. एटलीस्ट एवरेज एट एवरेज। ओके, ना एवरेज स्टूडेंट, हाँ। एज आई सेड, एवरेज फैमिली मैन, एवरेज फैमिली मैन, एक एवरेज बेटा, एक एवरेज दोस्त। दोस्त तो खैर मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा दोस्त, विद स्टेडफास्ट कमिटमेंट, है ना। बहुत बड़ी कमिटमेंट चाहिए, बाकी सब कुछ एवरेज में चल जाएगा, लेकिन कमिटमेंट पूरी चाहिए। हाँ हाँ, डिसिप्लिन, एक सिंसियरिटी, डिसिप्लिन नहीं कहूँगा, एक सिंसियरिटी, बस ये भी है। एक सिंसियरिटी। सो ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो हमने ऑलमोस्ट सब कुछ ही यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अगर एंड में अगर आप कैंडिडेट्स को खुद अपने पार्ट पे कोई मैसेज देना चाहते हो, ठीक है, तो आप प्लीज़ कैंडिडेट्स को बता सकते हो कि जस्ट अ सिंपल रॉ मैसेज, ठीक है, कि आई एम लेफ्टिनेंट चाहत अली, आई रिसेंटली कमीशन फ्रॉम OTA चेन्नई, ठीक है, एंड इफ़ यू ऑल्सो वांट टू बी कमिंग, यू वांट टू कम टू एट दैट पॉइंट जहाँ पे मैं अभी हूँ, या आपकी भी इच्छा आप ऑफिसर बनो, ठीक है, तो आपका क्या मैसेज रहेगा कैंडिडेट्स के लिए? माई मैसेज विल बी सिंपल, look, if you want to be here where I am right now, so there's nothing that's called impossible. Everything is possible. All you have to be sincere. Just change your thought process. Don't come for a point that कि हाँ मुझे एक जॉब चाहिए. It's not basically a job नहीं है. पहली बात तो ये, it's a service to the nation, service to the people, service to the community. अगर आप इस प्रोसेस से चलोगे कि मुझे सर्व करना है लोगों को, definitely the day is not far when you will be having those stars on your shoulders. But if you'll go with the point कि हाँ एक जॉब है, जॉब के लिए तो मुश्किल हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगा. So come with this mindset only कि yes, I have to serve the community, or I have to serve my nation, I have to serve the people, and the thing that I am doing is not for me, it is for the country, it is for the people, and just be sincere. जो भी आप कर रहे हैं, be sincere with them, be sincere with your work, be, I'll say sincere with your family like in the sense if your family is spending on you, then there has to be outcome. बिल्कुल। अभी ऐसे बात करते हैं मेरे माइंड में क्वेश्चन आ गया, अदरवाइज आई वाज अबाउट टू एंड इट। पहली बार लेफ्टिनेंट कब बोला किसी ने? पहली बार लेफ्टिनेंट किसने बोला? लेफ्टिनेंट, वेरी फर्स्ट टाइम, हाँ, माय फ्रेंड, मेरा फ्रेंड है, तो देन आई गॉट रिकमेंडेड, मेडिकल हो गया, सब हो गया, देन आई वाज अबाउट टू टीच द एकेडमी, एंड आई कॉल्ड इन कि हाँ भाई पहुँचने वाला हूँ. सो इंद्रजीत नाम है उसका, हम दोनों हिंदी के लिए साथ प्रिपेयर कर रहे थे. इज फ्रॉम गुवाहाटी. ओके, हाँ, तो आई थिंक सो 2016 में आई मेट हिम, तो अभी तक साथ है. दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रिपरेशन. प्रिपरेशन, दोस्त बन जाते हैं. Even the guys I met during my SSB just for 5 days. At one point I was also screened out. 4-5 घंटे के लिए बंदा मिला, बट स्टिल ही इज इन माय कांटेक्ट. हाँ, तो ये होता है. तो अब वही चीज़ में क्या होता है ना, आपको एक ब्रदरहुड के भाई मिलते हैं यार. अभी वो जो आपको सिर्फ 5 दिन के लिए मिले हैं, वो अभी तक आपके साथ हैं. वो जिन्होंने आपके साथ 11 महीने की ट्रेनिंग करी है, तो बेसिकली उसने पहली बार कहा था, तो मैंने कहा भाई मैं पहुँच गया हूँ, ऐसे बस अंदर एंटर कर रहा हूँ अकेडमी में. हाँ, तो जस्ट योद्धा गेट है उसका, OTA का जो गेट है, योद्धा गेट से एंटर कर सकूँ. तो फिर उसने पहली बार कहा था हाँ भाई अब तो लेफ्टिनेंट चाहत अली हो गया. मैंने यार अभी तो नहीं हुआ, बट अभी टाइम है.
और जब होने के बाद किसी ने बोला तब कैसे फीलिंग आई? लगा कुछ पहाड़ उखाड़ दिया? नहीं, ऐसा नहीं था कि पहाड़ उखाड़ दिया। यूजुअली क्या हुआ था कि टाइम ही नहीं मिला इतना कि ये सब कुछ करते रहे, चलते रहे। फिर हमारी पिपिंग से पहले पिपिंग की प्रैक्टिस होती है, जो वेरी फर्स्ट प्रैक्टिस थी, उसमें ये था कि अंदर से एक फीलिंग, जैसे क्या प्राउड फील आया था, गूज़बम्स आया ना कि यार हाँ मैन होने वाले हैं। जब वेरी फर्स्ट टाइम जब यूनिफॉर्म आई थी, यूनिफॉर्म पहनी थी, तो वो था। और उसके बाद सेकेंड जो आया था वो उस दिन आया था व्हेन माई फादर वॉज देयर, माई मदर वॉज देयर एंड दे जस्ट पुट द सास, तो वो था, वहाँ से आता। और तो बाकी तो लेफ्टिनेंट का मुझे सबसे जो पहला याद है वो उसी का याद है। और उसके बाद रिकमेंड होने के बाद तो यूजुअली रिकमेंड होने से पहले ही एकेडमी में शुरू हो जाता है। हाँ, आप मतलब पोस्टमेट्स के साथ आपस में मजाक मुझे के सब कुछ, तो वो चलता रहता है। और उससे पहले आपके इंस्ट्रक्टर्स हो गए जो आपके साथ होते हैं वहाँ पे, जिनका बहुत बड़ा रोल होता है आपको यहाँ तक पहुँचाने में। वो यूजुअली आपको एड्रेस करना शुरू कर देते हैं। हाँ, वो जो उस्ताद होते हैं उनका एटीट्यूड चेंज होता है आफ्टर द सेरेमनी? उस्ताद होता है सर बाद में भी? हाँ, उस्ताद ही रहता है। तो वो जो पहले थे वो तब भी वही होते हैं। उनके लिए तुम वही हो? हाँ, उनके लिए हम वही हैं और हमारे लिए भी वो वही हैं कि ये उस्ताद थे, उस्ताद हैं और उस्ताद ही रहेंगे। और उनके लिए भी ये था कि हाँ ये मेरा कैडेट था, कैडेट है। और अच्छा है, चलो अभी उनके लिए भी बहुत प्राउड फीलिंग होती है भाई यार, हाँ कि हम किसी को ट्रेन करने, आज पूरा 1 साल हो गया उसको ट्रेन करते हुए, और आज वो एज अ लेफ्टिनेंट हमारे सामने खड़ा है। बिल्कुल, है ना। इट्स लाइक यू आर इन दी सेम प्रोफेशन, काइंड ऑफ अ सेम प्रोफेशन। यू आर ऑल्सो इंस्ट्रक्टर आई विल से, ठीक है, यू आर अ मेंटर आई विल से। तो उसके बाद फिर आपको होता होगा कि हाँ, अब जब आप देखते होंगे कोई आपका स्टूडेंट, ये ऑब्वियसली जब कोई कैंडिडेट यहाँ से वहाँ पहुँच जाता है, जब उसके जर्नी को देखते हैं ना कि ही यूज्ड टू सिट हियर, ठीक है, देन ही यूज्ड टू कम लेटर ऑन फॉर डाउट्स एंड ऑल, वो आते ही याद, मतलब आफ्टर द रिजल्ट या यू गेट दैट मीनिंग कि मतलब हाँ हमने थोड़ा वो तो कुछ ना कुछ तो किया है इसके अंदर। सो वो होता है। तो उनके लिए भी जब आप अपने सामने 300-350 स्टूडेंट्स को आपने कमीशन होते हुए देख रहे हो, तो वो एक बहुत प्राउड फील होती है। इवन तो जो हमारा पहला सैल्यूट होता है वो उस्ताद को, उस्ताद ही करते हैं, हमारा उस्ताद को होता है पहला सैल्यूट, जो होता है। ठीक है, चलो तो फिर इस पॉइंट के ऊपर, हैप्पी नोट के ऊपर हम आज की जो कॉन्वर्सेशन उसको एंड करते हैं, ठीक है। सो कैंडिडेट्स अगर आप इस पॉइंट तक पहुँचे हो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अटेंडेड दिस पॉइंट। और आई ऑल्सो बिलीव कि जो भी हमने यहाँ पे बातचीत करी है उसको थोड़ी सी आपको मोटिवेशन मिली होगी, थोड़ी सी आपको गाइडलाइन मिली होगी। इट वॉज मोर ऑफ अ इनफॉर्मल काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन रेदर देन अ फॉर्मल इंटरव्यू और समथिंग। बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, बट हम यहाँ पे इनफॉर्मली बात कर रहे थे। एंड थैंक यू सो मच लेफ्टिनेंट चाहत अली, ठीक है, फॉर कमिंग हियर टू इंटरव्यू स्टूडेंट्स। एंड वी आर होपफुल कि मतलब फ्यूचर में हम और भी बात करेंगे और आपकी कमीशनिंग के बाद जो आपके रेजिमेंट की जर्नी है उसके अंदर जानेंगे हम। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।